Hello and welcome back to the learning equation. How are you all doing? I hope very well. So today is the last video of the chapter motion and आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ये तीन टॉपिक्स kinematic equations of motion and their derivation, numericals on equations of motion and lastly the uniform circular motion. चलिए let's get started then. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक kinematic equations of motion. इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि whenever we have to find the physical quantities from any situation, तो उसके लिए हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे. वो क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन है हम आगे डेरिवेशन के दौरान ही समझ लेंगे. तो उसके लिए हमने एक सिचुएशन क्रिएट किया कि लेट अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and after traveling for time t it gains final velocity v and the acceleration will be a. तो ग्राफिकली इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं on the coordinate axis, taking time on x-axis, velocity on y-axis. Suppose the body is at the origin and for traveling with some initial velocity u up to a point, it gains acceleration and final velocity becomes v in time t. तो इस ग्राफ के थ्रू ही हम तीनों इक्वेशंस को डराइव करने का ट्राई करते हैं. पहला हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू, विच विल बी a is equal to v minus u upon t. As per the formula and the definition of acceleration, we know that acceleration is rate of change of velocity. So a is equal to v minus u upon t, or at is equal to v minus u, or we can write it as v is equal to u plus at, which is the first equation of motion. अब इसके बाद डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इसी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जिसे हम s से डिनोट करते हैं ग्राफिकली, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी. अब ग्राफ में हमें दिख रहा है एरिया कवर्ड बाय द बॉडी इज एरिया ऑफ ओ ए बी डी, which can be split into two geometrical figures, triangle and rectangle. तो triangle का area of triangle ABC and area of OACD. Putting the values half into B into H for the formula of triangle and L into B for rectangle. Now base for triangle, base is AC. AC is parallel to OD. OD की वैल्यू है T, तो AC will be also T. And height is BC. Now अब यहाँ देखें कि जो BC है, this BC can be written as BD minus CD. ठीक है, तो BD क्या है, दिस होल इज वेलोसिटी V एंड CD क्या है, दिस इज U. तो टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ HBC यहाँ पर V माइनस U. नेक्स्ट आगे है L इंटू B, L और ये है B विच इज U, L इज अगेन T, U इंटू T. थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे. V minus U, putting the value for V which is U plus AT, minus U plus UT. U cancels out with minus U, so it becomes half T into AT square plus UT. So finally we got an expression for calculating the distance which is S is equal to UT plus half AT square.
So this is our second equation for the kinematic equations of motion में, and इसी से ही हम आगे थर्ड इक्वेशन भी डराइव कर सकते हैं. लाइक अगर हम डिस्टेंस s को एरिया ऑफ ओ ए बी डी मानते हैं, सो दिस एरिया ओ ए बी डी, instead of representing as area of triangle and rectangle, we can also represent it as by the area of this trapezium. देखिए ये शेप कुछ एक ट्रेपीजियम जैसी है जिसमें ये पैरेलल साइड्स हैं, तो उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये उनके बीच में हाइट कहलाई जाएगी. दिस इज h एंड ये पैरेलल साइड्स a और b, and we know that area of trapezium is half into h into sum of the parallel sides. So using this area for trapezium in finding s, half into h into a plus b, now putting the values of each of the h, a and b. H is this thing t into a is this thing u, और b is this पूरा वाला bd which is v. ठीक है जी, आगे देखें. हाफ इंटू, अब t को एलिमिनेट करें, एंड अगर हम t की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन निकालें तो इट कम्स आउट टू बी v माइनस यू अपॉन a. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, v माइनस यू अपॉन a, और यहां पर भी ये v प्लस u. नाउ यूजिंग मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हमने पढ़ा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये जो चीज है इसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी से रिप्रेजेंट करें तो इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे 2 इंटू ए 2a. नाउ 2a comes with s, it becomes 2as is equal to v square minus u square, and finally हम थर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं v square is equal to u square plus 2as. This is our third and the final equations of motion. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. एंड इसके बाद इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं. चलिए, न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. एन एथलीट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters. कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टाइम टू कंप्लीट द रेस. अब इसमें इस इक्वेशन, इस न्यूमेरिकल में हम पहले जान लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है. लाइक एन एथलीट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस कि इनिशियली वो रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0. गेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड मींस फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड over a distance of 100 meters. So we have s is equal to 100 meters, and what we have to find, acceleration and time a t. So using these three things हमें इन दोनों पर फोकस करना है. अब अगर हम ध्यान दें, हमारी जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square is equal to u square plus 2as. इनको यूज करने के लिए हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन है और जो निकालना है, इस पर फोकस करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग
वी यू ए और टी, जिसमें से वी हैव वी यू, बट ए और टी दोनों ही हमें नहीं दिए गए हैं, तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो निकाल यूज ही नहीं की जा सकती। दूसरी चीज जो है, दूसरी इक्वेशन एस से रिलेटेड है। वी आर गिवन एस, वी हैव यू एंड ए और टी दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड भी नहीं यूज की जा सकती। अब रहेगी थर्ड और फाइनल, तो इसी में हम पुट करेंगे वैल्यूज को। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पुटिंग द वैल्यूज 10 स्क्वायर is equal to 0 का square plus 2 into a we have to find s is again 100, 10 का square 100 is equal to 0 plus 200 a, और 100 is equal to 200 a, and finally 100 upon 200 इज इक्वल टू ए, क्योंकि 200 और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 200 को शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड तो वो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, एंड वी विल गेट ए इज इक्वल टू 1/2, 2 जीरो से 2 जीरो रिड्यूस होकर 1/2, और डेसिमल फॉर्म में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा ए आ गया। नाउ इसके बाद जो दूसरी चीज पूछी जा रही है वो है टाइम। टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव यू ए एंड वी यू एंड ए, तो टाइम हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुटिंग वैल्यूज, v इज 10 इज इक्वल टू u इज 0 प्लस a इज 0.5 t, 10 is equal to 0.5 t, 10 upon 0.5 is equal to t. So t is equal to 10 to the 20 seconds. I hope it is clear. Second numerical is a bus increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. Find its acceleration. तो अब हम पहले यहाँ देखेंगे किलोमीटर पर आवर, but time is in seconds. So definitely we are going to change the speed from kilometer per hour to meter per second. And previous video में हमने ये समझा था कि whenever we have to move from kilometer per hour to meter per second, we have to multiply by simply 5 upon 18. तो 20 किलोमीटर पर आवर into 5 upon 18, reduce 50 upon 9 meter per second. Secondly, 50 kilometer per hour multiply by 5 upon 18, 125 upon 9 मीटर पर सेकेंड। सो अब हमारे पास क्या है, स्पीड चेंजेस फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50, और वी कैन से फ्रॉम 50 upon 9 मीटर पर सेकेंड टू 125 upon 9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज u and v is 125 upon 9, टाइम इज 10 सेकेंड्स, एंड एक्सलरेशन आपसे पूछा जा रहा है। सो वेरी सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जा सकती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 125 अपॉन 9 इज इक्वल टू 50 अपॉन 9 प्लस a इंटू 10। नंबर को नंबर की साइड शिफ्ट करेंगे, 125 अपॉन 9 माइनस 50 अपॉन 9 इज इक्वल टू 10a। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, 125 माइनस 50 करने पर 75 अपॉन 9 इज इक्वल टू 10a, एंड देन 10a से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जब इसको लेकर आएंगे चेंज करेंगे साइड
तो इट विल कम इन द डिनोमिनेटर. 75 अपॉन 9 इंटू 10 इज इक्वल टू ए. 5 से रिड्यूस किया, 3, 5. So we have 5 upon 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और आप इसको डेसिमल में भी ला सकते हैं, विच इज 0. लेट मी डिवाइड 6, 7, 6, 8 48, 2, 20, 2 12, 3 18, then 2, 20. So 0.8333 चलता ही रहेगा. तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे लाकर इसको छोड़ देंगे. क्लियर? थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, समझते हैं. A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by brakes to produce an acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance the scooter will cover before coming to rest? अब इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. स्कूटर इज मूविंग ऑलरेडी एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. स्टॉप्ड मतलब ये हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी. जो मूव कर रहा है ये हो जाएगा u. एंड एक्सलरेशन इज ऑलरेडी नेगेटिव माइनस 0.5. तो आपको डिस्टेंस s पूछा जा रहा है. ठीक है जी. तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं और वैल्यूज को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. v0, u इज 10 meter per second, a is minus 0.5 meter per second square, and you have to find distance s. अब इसमें ध्यान देने की चीज, v, u और a दिया है, t नहीं दिया, s निकालना है. तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो तो यूज नहीं होगी क्योंकि उसमें टाइम यूज होता है. तो रह गई थर्ड इक्वेशन विच इज v square is equal to u square plus 2as, जिसमें हमें v, u और a दिया है and s we can then find out. Putting values, v है 0, u है 10, 2 into minus 0.5 into s. 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0.5 इंटू 2 इज 1.0 इंटू s. और 1s भी हम लिख सकते हैं या सिंपल s भी नेगेटिव s में भी लिख सकते हैं. एंड इस s नेगेटिव साइड को इधर लेकर आएंगे. 1s इज इक्वल टू 100 रह गया इधर. सो डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू 100 मीटर्स. ठीक है, क्लियर है? आई होप ये क्लियर है टॉपिक. इसके बाद फाइनल जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम इसमें समझेंगे कि जब बॉडी एक सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है तो उसका मोशन का कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. सर्कुलर मोशन से पहले हम कुछ डिफाइंड नंबर ऑफ साइड्स में मोशन देख लेते हैं. सबसे पहले एक बहुत आसान सा स्क्वायर देखते हैं. अगर एक स्क्वायर शेप के पाथ पर बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है? 4 टाइम्स. अगर एक हेक्सागोनल पाथ है, इसकी 6 साइड्स हैं, तो उसकी डायरेक्शन 6 बारी चेंज होगी, 6 टाइम्स. इसी तरह से जब नंबर ऑफ साइड्स हम बढ़ाते जाते हैं एंड फाइनली अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं तो एक सर्कुलर मोशन में बॉडी जब ट्रेवल करती है तो कितनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. तो सबसे पहले हम इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर हम पॉइंट्स बता लेते हैं कितने पॉइंट्स हैं. तो कितने पॉइंट्स होते हैं एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं. तो एट एवरी पॉइंट
द डायरेक्शन इज चेंजिंग आउटवर्डली, बाहर की तरफ डायरेक्शन उसकी बॉडी की रहेगी, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है हर समय हर पॉइंट पे। तो अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर हम सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन हर बारी चेंज हो गई। तो इट मीन्स कि व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड रिगार्डिंग सर्कुलर पाथ, तो मैग्नीट्यूड इज सेम, सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड तो रहेगा, बट व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी? क्या उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहना सही रहेगा? नहीं, बिकॉज ऑल्दो द मैग्नीट्यूड इज सेम, हम कह रहे हैं जैसे 10 की स्पीड से अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट एवरी टाइम द डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब मानी जाती है? जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही एक समान रहते हैं। एंड यहाँ इस केस में यूनिफॉर्म स्पीड में कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एवरी टाइम, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको कहना गलत होगा। So we can say that a body traveling in a circular path with a uniform speed will not have a uniform velocity. It is traveling with an accelerated motion. ठीक है, क्लियर है? आई होप ये चीज क्लियर है आपको। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर मोशन। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ऑल्दो आई नो कि ये 9th क्लास के लिए थोड़ा सा ट्रिकी सा चैप्टर है, क्योंकि सारी चीजें, सारे कंसेप्ट न्यू हैं, एंड आई हैव ट्राइड वेरी वेल फ्रॉम माई साइड आपको क्लियर करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो डू टेल देम इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।